In this video, we will discuss static, comparative static, and dynamic equilibrium. This is part 4 of the 5 videos on equilibrium. Part 1 is related with concept, stability, existence, and uniqueness of equilibrium. Part 2 explains stable, unstable, and metastable equilibrium. Part 3 is related with Marshallian and Walrasian approaches of stability of equilibrium, and Part 5 explains partial and general equilibrium. Here in Part 4 we will discuss static, comparative static, and dynamic equilibrium. Static equilibrium is an equilibrium in which the relevant variables do not change over time. जैसे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने एक डिमांड फंक्शन लिया, सप्लाई फंक्शन लिया, उसके बेस पर ये टेबल बनाया, ये डायग्राम बनाई, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया. दिस इज़ अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब अगर इस टेबल को, इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ करें, आप भी डायग्राम साथ साथ बनाओ ताकि आपको डायग्राम की जो डेरिवेशन है वो पता चल जाए. Now suppose the demand function is quantity demanded of x. This is suppose 60 minus 10 px, and the supply function is suppose quantity supplied of x. This is suppose 10 px. अब डिफरेंट प्राइसेस अगर हम लें टेबल बनाने के लिए, शेड्यूल बनाने के लिए, सपोज हम प्राइस लें 6 तो 60 हो जाएगा, ये डिमांड आ जाएगी 0. 6 प्राइस से हम स्टार्ट कर रहे हैं. 6 5 4 3 2 1 0. What will be the demand? Suppose this is D1. ये मान लो हमारा फर्स्ट फंक्शन है. अगर हम यहाँ पर 6 प्राइस पुट करेंगे तो 10 इंटू 6 60, 60 माइनस 60 मीन्स 0. और अगर हम 5 प्राइस पुट करेंगे तो 50, 60 माइनस 50 मीन्स 10. अगर 4 प्राइस पुट करेंगे तो 40, ये आ जाएगा 20. ऐसे ही 30, 40, 50 एंड 60. और जो हमारी सप्लाई है, सपोज सप्लाई ऑफ एक्स, इसको हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 6, 6 प्राइस पर इट इज 60. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, देन 40, 30, 20, 10 and 0. This is the demand D1, this is supply, and here the equilibrium is this point where demand and supply both are same 30 30. ये equilibrium है, and this is the equilibrium price and this is the equilibrium quantity. और ये हमारा एक static equilibrium है. अगर हम इसको अब डायग्राम में ड्रॉ करें,
horizontally quantity, vertical price of x. This is the quantity of x. प्राइसेस हमारे पास हैं 6 तक. Suppose this is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और क्वांटिटी हमारे पास है यहाँ पर 60 तक. This is suppose 1, 2, 3, 4, or you can say 10, 20, 30, 40, 50 and 60. This is the graph paper. Now on the basis of table, at 6 price, demand is 0. At 5 price, demand is 10. 5 price, demand is 10. 4 price, demand is 20. 3 price, demand is 30. 2 price, demand is 40. 1 price, demand is 50. And 0 price, demand is 60. This is the demand curve. D1. ये हमारी बन गई डिमांड कर्व D1 on the basis of फर्स्ट शेड्यूल. एंड जो सप्लाई कर्व है at 6 price, supply is 60. 6 price, supply is 60. 5 price, supply is 50. इधर से 5 price, इधर से 50 supply. 4 price, 40 supply. 3 price, 30 supply. 2 price, 20 supply. 2 price 20. 2 price 20. 1 price 10 supply. 0 price 0 supply. This is the supply curve. And this is a static equilibrium point. Suppose it is E1. This is the equilibrium quantity 30. This is equilibrium price 3. तो ये जो हमारा equilibrium बना 3 price and 30 quantity, this is a static equilibrium. ये एक static equilibrium है, इस टेबल में भी और इस डायग्राम में भी.
इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर मान लो डिमांड फंक्शन चेंज हो जाए, ये वाला, या मान लो सप्लाई फंक्शन चेंज हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा और नए जगह पर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ये इक्विलिब्रियम जो है ये एक स्टैटिक पॉइंट है। अब अगर हम डिमांड फंक्शन को चेंज कर दें, सपोज हमारा जो न्यू डिमांड फंक्शन है, मान लो QD2 अगर हम इसको लगाएं, दिस इज सपोज 80 माइनस 10px। अब अगर हम 80 के हिसाब से यहाँ पर डिमांड बनाएं D2, यहाँ पर 6 प्राइस पुट करेंगे पहले, तो 60 बन जाएगा। इट मीन्स ये बन जाएगा 20। 80 माइनस 60 20। 5 प्राइस पुट करेंगे तो ये 50 बन जाएगा। 80 माइनस 50 इट मीन्स 30। ऐसे ही 4 प्राइस पुट करेंगे 40, तो 80 माइनस 40 40। 3 प्राइस पुट करेंगे तो 30। 80 माइनस 30 50। 2 प्राइस पुट करेंगे 20। 80 माइनस 20 60। 1 प्राइस पुट करेंगे 10। 80 माइनस 10 70। 0 प्राइस पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 80। दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व और न्यू डिमांड शेड्यूल। इसको अगर हम अब डायग्राम में बनाएं, 6 प्राइस 20 डिमांड, 6 प्राइस 20 डिमांड, 5 प्राइस 30 डिमांड, 4 प्राइस 40 डिमांड, 3 प्राइस 50 डिमांड, 2 प्राइस 60 डिमांड, 1 प्राइस 70। तो यहाँ पे हमें 70 80 2 पॉइंट और लगाने पड़ेंगे। दिस इज 70 and this is 80। So 1 प्राइस पर है 70 डिमांड एंड 0 प्राइस पर है 80 डिमांड। दिस इज द न्यू डिमांड कर्व। D2 और ये है हमारी सप्लाई SX। अगर अब हम इक्विलिब्रियम चेक करें, न्यू इक्विलिब्रियम इज हेयर। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, सपोज E2। now this is the equilibrium quantity 40 and this is the equilibrium price 4। अब ये कोई नई इक्विलिब्रियम प्राइस है, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। पहले हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी वो थी 3 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी 30। पहले ये इक्विलिब्रियम था, अब ये इक्विलिब्रियम है, दिस वन। इक्विलिब्रियम प्राइस 4 एंड सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड और डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। दिस इज वन स्टैटिक पॉइंट, दिस इज अनदर स्टैटिक पॉइंट। ये भी एक स्टैटिक पॉइंट है, ये भी एक स्टैटिक पॉइंट है। सो कंपैरेटिव स्टैटिक क्या है? कंपैरेटिव स्टैटिक स्टडीज एंड कंपेयर्स टू और मोर इक्विलिब्रियम पोजीशंस।
दो जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं, इस स्टैटिक पॉइंट को एंड इस स्टैटिक पॉइंट को आपस में कंपेयर करना, दैट इज नोन एज कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स. सो कंपैरेटिव statics studies and compares the values means पहली जो हमारे पास वैल्यू आई थी, प्राइस थी, एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास है E1, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास है E2. E1 पॉइंट पर जो प्राइस है 4, डिमांड एंड क्वांटिटी यू कैन से क्वांटिटी है 30. और अब हमारे पास जो प्राइस है 4, पहले प्राइस थी 3, पहले प्राइस 3 थी, क्वांटिटी थी 30. अब हमारे पास प्राइस है 4 और क्वांटिटी है 40. तो ये हमारे पास दो इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं, एक E1 एक E2. इन दोनों वैल्यूज़ को इसको इसके साथ कंपेयर करना, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को कंपेयर करना, प्राइस को कंपेयर करना, क्वांटिटी को कंपेयर करना, दिस इज़ नोन एज कंपैरेटिव स्टैटिक्स. क्योंकि ये एक स्टैटिक पॉइंट है, ये एक स्टैटिक पॉइंट है, जब हम दो स्टैटिक पॉइंट का कंपैरिजन करें, दैट इज़ नोन एज कंपैरेटिव स्टैटिक्स. डायनामिक क्या है? डायनामिक एनालिसिस स्टडीज हाउ दीज वेरिएबल्स चेंज ओवर टाइम. अब हम एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पर कैसे गए, ये जो रास्ते की स्टडी है, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या एनालाइज करता है? ये एनालाइज करता है शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. दिस वाज अबाउट द static, comparative static and dynamic equilibrium. For concept stability, existence and uniqueness of equilibrium, for stable, unstable and metastable equilibrium, for Marshallian and Walrasian approaches of stability of equilibrium, and for partial and general equilibrium, must watch all the 5 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.